Hello, today we'll start the equivalent circuit, how to obtain the equivalent circuit of the synchronous generator. Okay. So as far as the synchronous generator is concerned, unlike the induction generator, which is singly fed, right? The stator side of the induction generator is singly fed. Here we are giving supply to both the stator and the rotor windings. To the stator winding, we are giving the AC supply. As far as the rotor windings, we are giving the DC supply. But what makes it, see, there are certain assumptions, okay, factors. So there are four factors, okay, that that basically are responsible for modeling synchronous generators. Okay, modeling it. Now the number one thing is, see, when we are supplying the voltage to it, let this EA, this be the internal generated voltage. Okay, this is the internal generated generated voltage. Now look at this internal generated voltage. This voltage is usually the voltage that appears at the terminals of the generator. Now, in fact, the only time this internal voltage would be same as the phase voltage, when it would be same as the phase voltage, is that there is no reaction in the armature. What is the armature? So basically, the output voltage, that is V phase from a phase, should not be equal to EA only if there is an current passing through the armature. Suppose I am giving this EA and just there is a wire and there is no resistance in the armature. So if there is a resistance in the armature, the voltage here would be different. That would be V phase. Okay. Why it would be V phase? Because it is just like this. This is your EA. Okay. This is your RA. Okay. And now you have to see this voltage. But naturally, this is your IA. So going like this. And this is your IA and RA. So this V phase, if you just apply the KVL, this is your plus minus. So if current is entering this direction, this is minus EA. Okay, this is plus IARA and this is your plus V phase. Right? Remember this. Current is entering the positive means it is positive. Here this arrow is negative, so negative. And across this direction only establishes the flow. So here this equated to zero. So here if you check here, so V phase would be equal to EA minus IARA if you are looking into this. So it is not the only factor. So the factor that is, see, equivalent circuit diagram you will get by analyzing the factors, okay, that affect this. So number one is the distortion, distortion of the air gap magnetic, magnetic field. How? By the current flowing in the stator. Okay, by the current flowing in the stator. So this process, distortion, current flowing in the stator, ये जो process है आपकी, this is called as the armature reaction. इसको बोलते हैं called as armature reaction. पहली वाली process ये हो गई armature reaction. ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा. ओके. अब जो ये कॉइल है इनमें सेल्फ इंडक्टेंस होगी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ आर्मेचर कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस एंड और ये प्योरली इंडक्टिव नहीं होती है, प्रिडोमिनेटली होती है, रेजिस्टेंस भी होगी इसमें ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर कॉइल्स. ठीक है, कॉइल्स. और जो जो फोर्थ फैक्टर है इसमें वो होगा इफेक्ट ऑफ सैलेंट पोल के, जो रोटर का जो शेप है सैलेंट पोल उस पर डिपेंड करता है, रोटर शेप्स. ठीक है. अब इधर पे जब आपको बनाना है इसको फॉर एग्जांपल, तो आप देखो ये होता कैसे है. प्रिडोमिनेटली पहले आप ये इस तरीके से आपने बनाना स्टार्ट किया. ठीक है. अब आपने ये देख रहे हैं आप ऐसे, तो ये आपने देखा एक ऐसे आ गया आपका पोल. ठीक है, ऊपर वाले नॉर्थ की तरफ. ठीक है. अगर दिस इज पॉइंटिंग आउट, देन द अदर वन इज पॉइंटिंग इन टू द पेज. ओके, दिस वाले. ठीक है, ये वाले और ये वाले. अब ये आपका स्टेटर का साइड है, ये आपका रोटर का साइड है. ठीक है.
ये आपका रोटर है इस तरीके से, इधर पे आपका रोटर है। अगर जब आपका ये आपका रोटर घूम रहा है और ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आई ये मैक्स आई, ठीक है, और ये रोटर की मैग्नेटिक फील्ड बी आर इस डायरेक्शन में है। अब जैसे ही आपने इसको क्या दिया स्टेटर में, फॉर एग्जांपल इधर पे जो मैंने पहला डायग्राम बनाया है, ये जो डायग्राम है, दिस इज शोइंग बेसिकली ए टू पोल रोटर स्पिनिंग, ओके, स्पिनिंग हो रही है इनसाइड अ थ्री फेज स्टेटर, इनसाइड है थ्री फेज स्टेटर। अब देखो स्टेटर पे देर इज नो लोड कनेक्टेड टू द स्टेटर, राइट, नो लोड कनेक्टेड, लोड नहीं है तो इसका मतलब नो लोड कनेक्टेड नहीं है तो करंट भी नहीं है, करंट इज जीरो। लोड का मतलब ही होता है करंट, लोड का मतलब होता है करंट इज जीरो, ठीक है, नो लोड कनेक्टेड टू स्टेटर, मीनिंग करंट इज जीरो, राइट, मीनिंग zero current is flowing, zero current flowing. If zero current is flowing, so that means what? There is no armature reaction, right? Or only armature reaction will come if some current will flow there. Okay, so this is the first case. So then, what is happening? Rotor magnetic field BR produces, right? So BR is like in sync with your terminal voltage, in sync with EA, which is your terminal voltage. EA जो कि टर्मिनल वोल्टेज है आपकी, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज, ये आ गया आपको समझ में। अब देखो ये यहां तक तो ठीक हुआ। अब जैसे ही रोटर मैग्नेटिक फील्ड को हमने ये दिया और ये कॉन्साइड हुआ, तो अब हम क्या करेंगे? इन केस में अगर हम इस जनरेटर को सपोज करते हैं कि एक लैगिंग लोड कनेक्ट करे, ओके, सो क्या हो जाएगा? तो एक चीज हो जाएगी, द पीक करंट विल अकर, है ना, करंट होगी, और ये जो लैगिंग लोड की वजह से होगी, जो करंट हमारी अकर होगी वो बिहाइंड द वोल्टेज होगी। अगर मैंने इसको एक इस वाले सर्किट को, ए वाले को मैंने लैगिंग लोड किया, ठीक है, अब मेरा दूसरे केस में क्या होगा? अब मैं कर रहा हूं कनेक्ट अ लैगिंग लोड, कनेक्ट अ लैगिंग लोड, लैगिंग लोड बी पार्ट के लिए मैं कर रहा हूँ एक लैगिंग लोड कनेक्ट, ये बाकी सारी चीजें सेम है, डॉट्स ये वाले सेम है, यहाँ पर थोड़ा मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो ये सेम है, ठीक है, ये जा रहे अंदर जा रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, तो ये मेरा रोटर का साइड है सर्किट का, और मैंने अब एक लैगिंग लोड कनेक्ट किया। तो बी आर तो एज इट इज जैसे मेरी थी बन रही थी, वो इसके साथ सिंक में थी, ईए के साथ जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। बट जैसे ही मैंने एक लैगिंग लोड कनेक्ट किया, तो मेरी एक करंट बनेगी जो बिहाइंड होगी, आई ए मैक्स। बिहाइंड क्यों होगी? क्योंकि एक लैगिंग लोड होता है इंडक्टिव, और इंडक्टिव लोड में क्या होता है कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, ठीक है, बिहाइंड वोल्टेज। अब यहां तक आपको समझ में आ गया? तो इससे क्या होता है, लैगिंग लोड मैंने बनाया इसको, अब इसमें जब ये सारा चीज मैंने डाल दिया, ठीक है, वो लैगिंग लोड भी कनेक्ट कर दिया, तो करंट फ्लो हो रही है स्टेटर वाइंडिंग्स में, और स्टेटर वाइंडिंग में जब करंट फ्लो हो रही है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है वहां पर। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं बोलूंगा द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, और बीएस से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डेवलप होगा, और ये जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा कहाँ पर डेवलप होगा? इसमें स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, ये जो करंट यहाँ पर बन गई, तो इससे स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हो गया बीएस। तो ठीक है, फ्लो ऑफ द करंट की वजह से स्टेटर मैग्नेटिक, ओके, द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड बीएस। अब जो ये द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बीएस की वजह से अपनी अपनी फील्ड प्रोड्यूसेस इट्स ओन वोल्टेज, प्रोड्यूसेस इट्स ओन वोल्टेज, ओके, कॉल्ड ई, ई स्टेटर। जैसे ई ए था, ई स्टेटर इसने अपनी प्रोड्यूस की अपनी, ठीक है, ये आपने कर दी, तो ये ई स्टेटर को भी मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर। तो इसने ई स्टेटर प्रोड्यूस की, और ये इस तरीके से यहाँ पर बना दो इसको, ठीक है, यहाँ पर ई स्टेटर, यहाँ पर ये हो गया। हाँ, आई बात समझ, ये थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम है ना, जल्दी जल्दी बनाते हैं, तो इधर ले लो इसको, उसको अंडू कैसे करूँ यार, कोई नहीं, ये ले लो इसको, ठीक है, ऐसे, और इसको ऐसे बना दो इधर, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। अब इधर पे देखो,
अब ये स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड बन गई, इसने इसका इसके साथ बनाया अपना, ठीक है, और ये लैगिंग हो रही है। अच्छा, अब नाउ, अब हमने ये वोल्टेज वगैरह बना दी, तो अब देखो, अब दो वोल्टेजेस प्रेजेंट है मेरी। एक मेरी फेज वोल्टेज आएगी। अब ये फेज वोल्टेज कैसे आएगी? फेज वोल्टेज आएगा मेरा वेक्टर सम ऑफ बी आर और बी एस। तो वेक्टर सम ऑफ बी आर और बी एस को अगर मुझे निकालना है यहाँ पर वी फेज के लिए, तो मुझे इसको वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा। किनको? बी आर और बी फेज को। तो वेक्टरली मैं ऐड करूंगा इसको। लेट सपोज कि ये है मेरा इनका वेक्टर एडिशन यहाँ पर, ठीक है। लेट से कि ये मेरा बी फेज निकल रहा है। ऐसे वेक्टरली मैंने इसको ऐड किया। ये मेरा जो फील्ड था, ये मेरा बी फेज आया यहाँ पर, इसको मैं बोलूंगा वेक्टर एडिशन। मतलब नॉर्मल एडिशन नहीं है, दिस इज वेक्टर एडिशन। तो देयर फॉर जो मेरा वी फेज आया, तो इन दोनों का एडिशन आ रहा है, ई ए का और ई सैट का। तो वी फेज वुड बी इक्वल टू ई ए प्लस ई सैट, एंड दिस इज एन वेक्टर एडिशन। ओके, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो अब एक चीज याद करो, वी फेज जो है वो मेरा जो वी नेट भी जो आया, ये इसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई। और ईए की वजह से रोटर की मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, और ईएस की वजह से स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी। तो ये दो फील्ड्स आपको ये दिमाग में रखना है। ये दो इक्वेशंस आपको यहाँ से निकल गई, ठीक है। अब आपको देखना है जो एंगल है बी आर और बी नेट के दरमियान, कि इसका मतलब बी आर ये है, बी फेज कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है बी नेट को। तो ये लेट से कि मैंने डेल रखा है एंगल बिटवीन, ये ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल एंगल। ओके, तो द एंगल, एंगल बिटवीन, बिटवीन बी आर यानी कि रोटर मैग्नेटिक फील्ड एंड बी नेट यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इंटरनल एंगल, और टॉर्क एंगल इज नोन एज इंटरनल, इंटरनल एंगल, एंगल और टॉर्क एंगल, ठीक है। ये टॉर्क का एंगल बन गया इसमें, ठीक है। अब ये जो एंगल है, ये प्रोपोर्शनल होगा टू द अमाउंट ऑफ पावर बीइंग सप्लाइड बाय द जनरेटर, ठीक है। अब इसमें देखना है आपको हाउ कैन इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, इफेक्ट्स हाउ, इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर, आर्मेचर रिएक्शन कैन बी मॉडल, रिएक्शन, ओके, ऑन द फेस वोल्टेज, फेस वोल्टेज मॉडल। अब आपको मालूम है भाई, एक चीज तो है, ये जब आप देख रहे हो, पहले हमने ई सैट को देखा। ई जो स्टेटर से आया, ई सैट बी सैट की वजह से आया, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया। और ये हमने देखा कि ये लैग कर रहा है 90 डिग्री बिहाइंड आईए, आर्मेचर की करंट बिहाइंड आईए। पहली तो ये कंडीशन हमने देखी। सेकेंड थिंग व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज दैट ई सैट जो है, ई सैट ये प्रोपोर्शनल भी है इसके। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, प्रोपोर्शनल मतलब इसकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड, वो इक्वल टू आई ए है, इक्वल टू, इक्वल टू आई ए। अब इसको मैं कैसे मॉडल करता हूँ? मैं बोलता हूँ चलो भाई, ई स्टार्ट तो एक वोल्टेज ड्रॉप है, लेट्स से कि ये माइनस जे इंटू एक्स इंटू आई ए है। अब एक्स एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ले लेता हूं मैं यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी। इससे क्या हो गया, मेरा वी फेस क्या था? वी फेस था मेरा ई ए प्लस ई सैट। ई सैट की जगह मैं ये इक्वेशन डालूंगा, तो मेरा वी फेस आ जाएगा भाई ई ए माइनस जे एक्स आई ए, ठीक है। अब इसी को अगर मुझे इक्वेशन में डालना है, तो मैं यहाँ पर मैंने लिया प्लस माइनस, ये लिया मैंने वी फेस, ठीक है, ये लिया मैंने जे एक्स यहाँ पर, और ये लिया मैंने आई ए। और जो वोल्टेज मेरी इस इनके बीच में बनी, ठीक है, ये सॉरी, ये आ गया मेरा ई ए, है ना। और जो ये वो वोल्टेज बनी मेरी वी फेज, अगर आप केवीएल लगाओगे, आपको ये सेम इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर। अब इधर पे देखना है, इधर पे एक चीज देखना है, इन एडिशन टू दिस इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्टेंस, ठीक है। अब आपको क्या है, ये तो हमने यहाँ पर सिर्फ आर्मेचर रिएक्शन के लिए पहली इक्वेशन बनाई है ना। दूसरी इक्वेशन क्या है, वहां पर सेल्फ इंडक्टेंस भी है।
ठीक है। तो ओके, इन एडिशन टू द इफेक्ट्स ऑफ, इन एडिशन टू इफेक्ट्स ऑफ, इफेक्ट्स ऑफ, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन। अब क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस भी तो है कॉइल्स की, सेल्फ इंडक्टेंस है कॉइल्स की, सेल्फ इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस भी है। कॉइल प्रिडोमिनेटली इंडक्टिव है, प्रिडोमिनेटली इंडक्टिव का मतलब उसमें रेजिस्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है। मगर एक चीज है, जो एल की वैल्यू है वो वेरी वेरी ग्रेट देन आर ए है। अब एल की यूनिट आती है हेनरी में, इसीलिए हम एल नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं एक्स ए, जो कि आ जाएगा ओमेगा इंटू एल ए। ओमेगा आता है आपका 2 पाई एफ। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये यूनिट आती है ओम्स में। सेल्फ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस हमने ले ली आर, रेजिस्टेंस आर है। इन दोनों के इफेक्ट को हमको, तो इन दोनों के इफेक्ट, तो इन दोनों में से करंट पास होगी। तो यहाँ पर वी फेस ई ए माइनस जे टाइम्स एक्स इंटू आई ए तो था, और यहाँ पर माइनस जे टाइम्स, क्योंकि माइनस जे क्यों लिखते हैं, इंडक्टेंस की वजह से लिखते हैं, एक्स ए इंटू आई ए और माइनस आर ए इंटू आई ए। तो ये किसकी वजह से आया, ये रेजिस्टेंस की वजह से आया, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये किसकी वजह से आया, ये सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से आया, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और ये पहला वाला पार्ट किसके वजह से आया, या आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन, इस वजह से आया आर्मेचर रिएक्शन। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स एस को लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स ए, ठीक है। अब आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट्स एंड सेल्फ इंडक्टेंस इन द मशीन आर बोथ प्रेजेंटेड represented by reactants. अगर, and these, see, this is your armature reaction effect, okay, armature, okay, and this is your self inductance effect, self inductance. If you combine these two, armature reactance effect and self inductance, so this excess is called as synchronous reactance, synchronous reactance, synchronous reactance. So we can safely say that V phase is equal to EA, और इधर पे माइनस जे आई ए कॉमन ले लो, एक्स प्लस एक्स ए ले लो, ठीक है। ये वाली चीज हो गई आपकी एक्सेस, माइनस आर ए आई ए बन गई, ठीक है। तो इसको ले लो आप, ये माइनस जे, ठीक है, एक्सेस इंटू आई ए है ना, ये क्योंकि एक्सेस हो गया आई ए, माइनस आर ए इंटू आई ए। तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट में आप देखो ये थ्री फेज सिस्टम है, क्या है। तो ये हमने जो एनालिसिस किया, हमने पर फेज बेसिस पे किया, पर फेज बेसिस पे। तो यहाँ पर अगर हम टर्मिनल वोल्टेज लिखें जो कि लाइन है, अगर ये लाइन स्टार कनेक्टेड है, तो स्टार में लाइन वोल्टेज होती है √3 टाइम्स द फेज वोल्टेज, ठीक है, स्टार के लिए, ये याद रखना। और वी टर्मिनल होगी वी फेस, ये होगी डेल्टा के लिए। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है आपको, इसको, अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, क्योंकि रोटर के साइड में आप क्या करते हो, रोटर के साइड में एक डीसी वोल्टेज देते हो, तो रोटर में भी अपनी इंडक्टेंस, क्योंकि प्रोडोमिनेंटली नहीं है, तो उसको फील्ड ले लेते हैं, एल एफ एंड आर एफ ले लेते हैं, और रोटर को आप डीसी देते हो सप्लाई, ठीक है। डीसी क्यों देते हो रोटर को सप्लाई, क्योंकि अदरवाइज इसमें स्लिप का डिस्टेंस हो जाएगा, जैसे इंडक्शन मोटर में होता है। इसमें क्या है, जैसे एक आप लट्टू घुमा रहे हो एक साइड से, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आपका रोटर का मैग्नेटिक फील्ड अगर स्टेशनरी हो तो डिस्टेंस आ जाएगी, इसीलिए हम क्या देते हैं, हम सप्लाई करते हैं डीसी एक्साइटेशन, ताकि हमारा रोटर का मैग्नेटिक फील्ड भी मूवमेंट पे आए। और जैसे ही ये स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड पे लॉक हो, तो आपका सिंक्रोनस जनरेटर सिंक्रोनस स्पीड से ऑपरेट हो। तो ये पर फेस इक्विवेलेंट है, तो हर एक फेस की के लिए हम बनाएंगे ये EA1, ठीक है, ऐसे बनाया हमने। तो इधर पे आ गया आपका J टाइम्स एक्सेस, है ना, वो एक्सेस क्या है, एक्स ए, एक्सेस है आपका एक्स प्लस एक्स ए, है ना, आर्मेचर रिएक्शन प्लस जो आपका क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ इंडक्टेंस का इफेक्ट। और ये आपका आर ए आ गया यहाँ से, आर ए, ठीक है, कोई मसला है। IA1 ये हो गया इधर, ये बनाया आपने ऐसे करके, ये आ गया आपका प्लस माइनस, ये आ गया आपका V+1। इसी तरीके से हर तीन साइड में आप बना दो, तीनों है ना ये, क्योंकि पर फेज मैंने बनाया। तो अगर बैलेंस सिस्टम है, तो बैलेंस सिस्टम में से, बैलेंस सिस्टम मतलब क्या हो गया, इम्पिडेंसेस तीनों की सेम है यहाँ पर, और जो इस वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, हाँ, ओनली फेज शिफ्टेड बाय 120 डिग्री है। तो इधर पे आर ए आ गया आपका, ठीक है, इस तरीके से ये बनाया आपने।
ये आ गया आपका प्लस माइनस वी फेज टू। ये आ गया आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, तो अगले वीडियो में मैं न्यूमेरिकल इसके साथ दिखाऊंगा आपको। ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है इंडक्शन मोटर के, जो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके पास टाइम है ये देखो। और इसका ये जो ये है नोट्स भी जो बन गए मेरे, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, तो आई विल स्टॉप हियर। ओके, टेक केयर।